आज का हमारा टॉपिक वैसे है पीटर थियल की बुक जीरो टू वन. I'll start with my introduction and then I'll move to Sadia. मेरा इंट्रो बहुत सिंपल सा है. I'm working in tech industry for about 8 years और मैंने sales, customer success सारे roles play किए हैं काफ़ी सारे. Right now I'm working as a product manager in a good company. I mean, yeah, it's an international company. Uh, और बाकी एक साइड में कभी बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ दोस सेशंस where we are going to talk about a book. Today I have with me Miss Sadia. Sadia, मैं आपसे मिला हूँ बुक रीडर्स क्लब्स के थ्रू. और yeah, go ahead and introduce yourself. Assalamu alaikum everyone. My name is Miss Sadia Bhatt and I'm basically an O-levels English teacher at the city school. But yes, you have to read a lot. But despite that, I'm an avid reader myself. I'm usually interested in crime thrillers, classic literature, and self-help book which has to do with whatever is going on in the world right now. So Faisal and I disconnected through the book club, like he mentioned, and we decided to do this podcast sort of thing. The book we selected was 0 to 1. So that is what we are going to discuss over here today. आपने ऐसे 0 to 1 pick क्यों करी? मतलब मैंने पूछा नहीं. Why did you pick this one? Somebody recommended you? Yes, actually. My sister, who doesn't live in this country actually at the moment, she and I both are readers, so we sometimes communicate which book we want to read and which we want to discuss. So it was basically her recommendation. She is into these business types of books. She basically reads for her kids, to make sure that she's making them select the correct career paths and everything. So it was actually her book she recommended. So I just had it already on my shelf. I just didn't have. I was planning to actually read it next. So when Faisal and I were discussing which book to select for a podcast, so when he mentioned 0 to 1, I said, just pick this one because it's already next. It was right next to me on the table. So yeah, I was already in fact on the second chapter when we discussed it. So that was it. Was pure chance selecting the book. I think your sister's kid are going to do good क्योंकि उनको अच्छी books पढ़ा रही हैं. Okay. So let's see. Okay, so let's start with the intro. क्योंकि book में important चीज़ है कि यार लिखी किसने. I mean, who's that guy? Is he trustable? Is he knows what he's talking about? So Peter Thiel, what do you want to say about him, the writer? Peter Thiel, I only came to know about him with the book itself. Book उन्होंने obviously लिखा हुआ है. He's the founder of LinkedIn and PayPal and everything, so that gives you the initial idea. But when I researched more about him, that he is actually the embodiment of his own book. This is what I discovered. The book basically, is something not every single person a must read कह के हम इसको pass out नहीं करना चाहते. It is a read for people who want to stay in touch with whatever is going around in their present environment basically. So Peter Thiel is not just another writer who is writing a self-help book like many other writers are out there. This is the guy I think you should actually listen to if you're planning to starting a company, if you're planning to start a business, or in general, if you want an idea on how to start a business or what to do next in your life, I think this Peter Thiel is the guy you should listen to. PayPal का founder है, and I just saw a video on YouTube और उसमें वो दिखा रहे थे कि जो इनिशियल टीम में इनके लोग थे उन्होंने जाके YouTube, eBay और इस तरह की कंपनी को जाके फाउंड किया. तो he's a big deal in Silicon Valley. तो yeah, it's worth reading that guy. तो उसकी बुक का जो पहला सवाल है, I'm going to jump into that. बल्कि उसमें बुक में मेरे ख्याल में पहले हम बात कर लेते ओवरऑल कि व्हाट दिस बुक इज अबाउट, वो किन चीज़ों की बात कर रहा है. तो आप क्या बताओ कि किस बारे में बुक है? Yes, sure. Having background from language department, linguistics की तरफ से, you would wonder why a person like me would actually pick up the book 0 to 1, but it was actually quite fascinating. Monopoly and certain few words, copy जो उसने words अपने use किए हैं book के अंदर, they're quite interesting to read
because they change your mindset. He actually explained that the next Mark Zuckerberg won't be creating Facebook, and the next Bill Gates won't be, making Microsoft. It has to be something new. So the difference between monopoly and a copy, that was made very loud and clear from the very beginning of the book. And it's not that technical कि अगर ये आपकी फील्ड से रिलेट नहीं करता तो you won't be able to understand the book. That's not the problem at all. I think everyone can easily understand what he was trying to say. And basically what he wanted you to do is, if you're starting a business, if you're looking out for a career or a job, whatever you want to do in life, by reading this book you will know at least what companies you want to work for, even if you don't want to create those companies. So that is something I think everyone should decide once in their life at least. So yeah, that was basically it. अगर उसकी if you want further examples we can go in depth. Yeah, I mean, खैर ये अच्छा एंगल था कि अगर आप कंपनी नहीं भी क्रिएट कर रहे तो यू शुड नो कि जहाँ आप काम कर रहे हो वो कंपनी किस टाइप की है. एंड इस बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि कॉपी मत करो प्रोडक्ट को, मोनोपोली क्रिएट करो, ऐसी कोई चीज़ लाओ. जब भी वो अब जकरबर्ग चाहे भी तो वो कुछ नया फेसबुक नहीं बना सकता. आई मीन इट हैज़ टू बी समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक. So जबरदस्त है. I mean, let's move to the first question that he is asking. थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है. कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग इसे कहता है कि अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन. तो इससे क्या मुराद है इसकी कि यार अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन इसे जाने का शौक भी है और ये रेकमेंड भी करता है. तो व्हाट डज दैट मीन सर? For me, again, I always solely speak for the common person, because again, ना मेरा कोई tech का background है, ना मेरा कोई corporate का background है. I'm just a small time teacher. ठीक है ना? So I always speak from that perspective. We are just readers and talking about a book, so no problem. Yes, exactly. So what I took away from this contrarian point of view which he wanted to encourage was basically, for example, like you mentioned, we use Facebook, we use Microsoft, we use all these things. These are normal for our generation because we grew up with these things. Peter Thiel is saying basically that you have to go out of this box. If you want to create something, it has to be new. It cannot rely on the same old technology. It has to advance. If every country makes their own Facebook, every computer team out there, if every office creates their own Microsoft, what's the point? You're just simply creating copies of one particular thing. So that is what he means by contrarian thinking. Only by thinking in the opposite direction will you be able to discover something. So this is what I took away from him basically. ठीक है ना? For example, nobody thought that Uber का idea, like he mentions in the book, nobody ever thought that we will be getting into strangers' cars. हाँ, बड़ा स्ट्रेंज है. उस वक्त किसी ने बोला होता जब उबर एग्जिस्ट नहीं करती थी तो हम बोलते भाई क्या पागल हो गया, कौन जाएगा इस गाड़ी में. I mean that was amazing. इवन स्टीव जॉब्स का कहते हैं कि वो बोलता था कि भाई दुनिया मोबाइल पे आ जाएगी, कीबोर्ड की जरूरत नहीं होगी. एंड पीपल वर लाइक ही वाज क्रेजी. तो लेकिन इट टर्न्स आउट द पीपल हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर दे आर सक्सेसफुल. स्पेशली मुझे सादिया इन टाइम्स पे ज़्यादा लगता है क्योंकि अभी सिचुएशन हम आई डोंट नो वी आर गोइंग टुवर्ड्स ग्रेट डिप्रेशन और व्हाटएवर. तो अभी इकोनॉमी सब कह रहे चेंज होगी. आप भी बात कर रहे थे कि जॉब नई किस्म की होगी दुनिया में. तो अभी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग की ज़रूरत है. एंड दिस बुक इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में क्या होगा वो प्रेडिक्ट करो और उसका सोल्यूशन ले आओ. तो यू क्रिएट अ मोनोपोली. तो अच्छा सेटअप है. Yes, exactly. अच्छा, फ्यूचरिस्टिक में मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था एक एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी एक बुक है और वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है. तो वहाँ पे जो करिकुलम पढ़ाया जाता है दैट्स बेस्ड ऑन फ्यूचर. 80% फ्यूचर करिकुलम होता है वहाँ पे फ्यूचरिस्टिक. और उनका जो गोल है वो ये है कि टू इम्पैक्ट द 1 बिलियन लाइफ. तो जो भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि 1 बिलियन पीपल को अफेक्ट कर सकती है वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं. उन्होंने बनाए दिए, तो इट्स नॉट जस्ट टॉक. तो वो भी इससे रेलेवेंट है. तो आई थॉट आई शुड शेयर इट. ओके, अच्छा. That's excellent actually. That's a very good idea because most of the time जब हमारे if you look at it from the average Pakistani perspective, यहाँ पे लोग इस चीज को नहीं फॉलो करते. If everyone just wants to start a business, they'll simply make another copy. एक अगर किसी की दही भल्ले वाली दुकान कोई चल गई है तो वो उसी के नाम पे एक और खुल जाएगी.
और दे जस्ट क्रिएटिंग कॉपीज अगेन। कोई मतलब वो उसको इस पर्सपेक्टिव से देखता ही नहीं है कि देयर इज ऑलरेडी ए कंपटीशन एग्जिस्टिंग फॉर दैट मार्केट, व्हाई शुड आई बॉदर। बट बल्कि नहीं, हम वो उसी उसी पे हाँ लगे रहते हैं। और प्राउड फील करते हैं कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है, उसे स्केल भी नहीं करते, और वो फादर के ज़माने से बिजनेस चला हुआ आ रहा है, एंड दैट्स ओके। आई मीन, बट टू एग्जैक्टली। हाँ क्रिएट मोर हाँ। जॉब्स यू नीड ऐसा माइंडसेट चाहिए ना, जैसे स्टीव जॉब्स का था, या पीटर थिल का हिमसेल्फ, कितने लोगों के जॉब्स क्रिएट किए। तो या इट्स अमेजिंग इफ यू कैन क्रिएट अ मोनोपोली। तो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए? आई मीन, नए आइडियाज चाहिए ना हमें। अब नए नए आइडियाज लाने के लिए यू हैव टू आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़ता है आपको, मे बी सोसाइटी बोलती है ये नहीं करो। तो यार इसी टाइप का सेटअप है, क्या कहते हैं आप? हाँ यस बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. जब आप वही बात है, यू हैव टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड। जब आप क्राउड में मिलते चले जाएंगे तो यू आर एवरीवन इज जस्ट इन अ सर्कल वेयर एवरीवन इज क्रिएटिंग कॉपीज। सो कुछ न्यू बनने के लिए आप जब तक उस क्राउड से बाहर नहीं आएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सी व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है ना। और उसमें मुझे फिर एक और पॉइंट मेरे माइंड में आया था व्हाइल रीडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द बुक, कि अब पाकिस्तान में अगर आप कोई चीज बनाते हैं तो वो नेसेसरली उसकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जा सकती। जिस तरह आपने मेंशन की कि देयर गोल इज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट फॉर 1 बिलियन पीपल एटलीस्ट। यस, तो पाकिस्तान में अगर यू वर सेइंग एग्जैक्टली। समथिंग, यू वर लाइक कि 1 बिलियन जॉब्स क्रिएट करने के ऊपर लोग काम करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा था। तो या यस कैरी एग्जैक्टली। ऑन। Yeah, I was basically making the point कि in Pakistan that's pretty मतलब nobody is looking at that उसको कोई इस एंगल से देख नहीं रहा। बेसिकली वी आर जस्ट solely focused on single person job, और एक ऐसी कोई काम किया जाए कि बस आपकी पर्सनल फैमिली सेटल हो जाए। कोई मतलब इन जनरल पब्लिक के लिए बहुत कम काम हो रहा है। एंड अगेन अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट भी की जा रही है तो उसमें प्रॉब्लम यही आ रहा है कि पाकिस्तान में इक्वालिटी की डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है, क्लास डिफरेंस आपका इतना ज्यादा है। यू विल नीड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और अ कंपनी वट एवर द आइडिया यू हैव, इट शुड बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल। सो ये दैट इज बेसिकली हाँ, ये सही पॉइंट है। मतलब मुझे भी ये खैर ये समझ नहीं आता कि हम लोग सिर्फ अपनी फैमिली का सोचते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, और बाहर जो जिन लोगों को हम पढ़ रहे हैं, पीटर थिल और इन सबको, दे आर लाइक टारगेटिंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स, और क्रिएटिंग थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। तो ये माइंडसेट का मेरे ख्याल में फर्क है, और दिस इज व्हाट पीटर थिल इज ट्राइंग टू एड्रेस, राइट? Yes, exactly. And in his book, we pointed this out before our discussions as well, that he particularly mentioned those people like Facebook. Mark Zuckerberg is famous throughout the world कि वो जो है ना, he always wears a black hoodie। अब बाकी उसने थोड़ा सा अपना wardrobe change की है, but मतलब they were always socially awkward people who came up with these ideas. They are all college dropouts। बिल गेट्स आपके, मार्क जकरबर्ग, अगेन यही सारे लोग हैं आपके मोस्टली सीईओज, इवन आइंस्टाइन, ये लोग सारे जो है ना वो दे वर ऑकवर्ड पीपल इन सोसाइटी, राइट? हाँ, इनफैक्ट आई वॉच्ड अ वीडियो बिफोर दिस, पीटर थिल की, और उसने ये कहा कि बहुत सारे सिलिकॉन वैली में जो फाउंडर्स हैं, दे हैव एस्पर्गर्स, और कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम है। और आइंस्टाइन के साथ भी ये था कि वो उसको डिसलेक्सिक था, आई गेस। और वी हियर द सेम थिंग्स अबाउट ऑल द फेमस पीपल। और उसका शायद रीज़न ये है कि आपको बड़ा आइडिया लाने के लिए सोसाइटी जैसा सोच रही है, आपको उसके अलग सोचना है। और जब आपको ये नेचुरल डिजीज होती है, जब आप सोशली लोगों से अटैच नहीं हो पाते फॉर अ डिजीज और फॉर अ रीजन, तो आप क्या करते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स खुद ही सोचना शुरू हो जाते हो। और जो सोशली कनेक्टेड लोग हैं, वो वही बातें सोचते हैं जो सोसाइटी सोच रही है। तो या कोई कनेक्शन है सोशली ऑकवर्ड होने में, फायदा है या नहीं? खैर, तो मूव ऑन करते हैं। इसने एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा, उसने जो बोला, उसने ये बोला कि यार दे आर मैनी सीक्रेट्स लेफ्ट टू डिस्कवर। तो इससे क्या वो कहना चाह रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पार्ट?
अच्छा वही यही वाली आपने भी एग्जांपल दी कि अभी फिर वो मुझे आने लगे कि कनेक्शन इज अनस्टेबल कि मतलब अभी तक हमारी लाइफ के इवन इंटरनेट कब से इन्वेंट हुआ हुआ है, लेकिन हमारी लाइफ के मसले अभी तक यही कनेक्शन ही ठीक आ रहा है। ये हम आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें ये होता है कि अब वो लेसन के शुरू में बच्चे एंटर होते हैं सारे, तो बाद अब 12 बच्चे इकट्ठे हो गए आपके पास, बाद एंड ऑफ द लेसन 5 या 6 बच जाएंगे, वो बाकी सारे बीच बीच में से उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो चले और आप जाते अपने आप से हैं। बोले जा रहे हो है। हाँ एग्जैक्टली एंड वो फिर अटेंडेंस लगाते हुए इट्स सच ए कनंड्रम, किसकी अटेंडेंस लगाया बंदा किसकी नहीं लगाई, ये तो चला गया था वो। कोई ऐसी चीज इजाद कर दे थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जिससे हम लोगों को इस तरह कनेक्टिविटी के मसले ना हो। तो यस ही इज एब्सोल्युटली राइट। हम अगर अभी तो हम बस कंप्लेन कर रहे हैं यहाँ बैठ के, लेकिन अगर इस पे काम किया जाए तो डेफिनेटली कोई सोल्यूशन निकल आएगा। बायोटेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें इतनी मतलब वास्ट हैं, मतलब आप स्पेस की तो दूर की बात है, हमसे अभी तक अपना ओशन पूरा जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ। तो हाँ, इतनी टेक्नोलॉजी है, भी इतने सीक्रेट्स रहते हैं, तो इसमें तो आई थिंक कोई डाउट है ही नहीं कि इसका वी एक नीड पॉइंट टू। हाँ इसका एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि इसने बोला है 19th सेंचुरी में हमें दुनिया का मैप नहीं पता था, तो हम ज्योग्राफी में जाते तो बहुत जबरदस्त टाइप था वो ज्योग्राफी में जाने का। फिर उसने कहा कि हमें बहुत सारे केमिकल नहीं पता थे 1920 सेंचुरी में, तो केमिस्ट्री में जाने में बहुत सारे सीक्रेट्स जो अननोन थे वो पता चले। तो उसने कहा अब इन फील्ड्स में बहुत सारे सीक्रेट्स हमें पता चल चुके हैं, तो देयर इज नॉट मच रूम इन देयर एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि आपको इंटरनेट या टेक इंडस्ट्री में जाना चाहिए, जहाँ अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो दे आर लेफ्ट टू बी डिस्कवर्ड। एंड ही इवन मेंशन बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट स्टफ। तो इट्स अ गुड अप्रोच कि आप ज्योग्राफी और केमिस्ट्री में ना जाओ, बट इस तरफ जाओ तो वहाँ पे रूम बहुत है। तो या एग्जैक्टली, एक्सपेंशन इज मोस्ट लाइकली इन द टेक डिपार्टमेंट। इवन मुझे हैरत होती है इन आवर सोसाइटी, इवन अभी जितनी फॉर एग्जांपल जो हमारी पेरेंटल जनरेशन है सारी, उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू, उनको ये टेक्नोलॉजी भी ज्यादा लगती है, दे आर सेइंग इट्स टू मच। हालांकि वी ग्रू अप विद दिस सो इट्स कॉमन फॉर अस। अब आगे हमें नेक्स्ट देखना है कि इसका नेक्स्ट फेज क्या हो। अच्छा, इस मेरे नोट्स में ये एक लाइन लिखी हुई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो ये बात इसने बोली, डू वन थिंग सिग्निफिकेंटली बेटर देन अदर्स। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसने कहा यार हम सबके जो है वो कोई ना कोई यूनिक एरियाज होता है। और इसने एग्जाम्पल मुझे बहुत याद अच्छी थी। इसने कहा स्कूल में जाते हो तो आप सारे सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ते हो, तो होता क्या है आप हर सब्जेक्ट में एवरेज बन जाते हो, बट एक्सेलेंट आप किसी सब्जेक्ट में नहीं बनते। So if you can find out one thing that you can do better than anyone else on the planet, so you can create a biggest company in the world, and that's what the successful people did. तो मुझे ये इसकी एक अच्छी बात लगी। ओके, मैं अगर इसमें नेक्स्ट पे आ जाऊँ, तो एक बात इसमें बस लास्ट में बोलूँगा, ये बोला सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ लक। तो आप भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हो कि भाई सक्सेस मैटर ऑफ लक नहीं है, या आप बोलते हो नहीं यार लक का रोल है? I think the ratio would probably be 80 to 20%. The reason why I say this because luck सिर्फ उनके लिए फेवर करती है, I guess who were born in a good household. ठीक है ना, उन आई गेस उन जैसे लोगों के लिए आप लक अप्लाई कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को ले लें, was born in a rich family. आप इन्हें अपने बाप से, वो रिचर्ड ब्रांसन है जो वर्जिन कंपनीज का जो ओनर है, उसकी भी यही स्टोरी है कि ही गॉट लोन फ्रॉम हिज ओन फैमिली एंड ही बिल्ड एन एम्पायर ऑन हिज ओन एज वेल। तो उनकी बट येट उनकी ये तो प्योर एग्जांपल है लक की, दैट दे आर बोर्न लकी। उसके बाद उन्होंने आगे उसको मल्टीप्लाई, बट यस ज्यादातर एक एवरेज इंसान के लिए लक इतनी ज्यादा कोई मैटर नहीं करती। इट्स अबाउट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बल्कि कि वही इवन बात है, बीइंग अ टीचर आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट कि हम हर एक बच्चे को ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग अ लैंग्वेज टीचर, मुझे उनको इंग्लिश की राइटिंग से रिलेटेड मल्टीपल स्किल्स सिखानी होती है। तो उसमें भी यही चीज सामने आती है कि जो बच्चा हर बच्चा हर स्किल में एक्सपर्ट नहीं होता। एब्सोल्युटली नो वे। हमें उनको पेपर में भी ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं कि पेपर से पहले हमारे बच्चों के साथ ये डिस्कशन होती है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये नहीं करना क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा कंपोजिशन टॉपिक मुझे इजी लगे, ऐसा नहीं होता।
आपने उनको 2-3 महीने पहले प्रिपेयर किया होता है इस चीज के लिए कि यू आर a narrative writer, you are a storyteller, you need to attempt the story writing question always. You are a descriptive writer, you can describe something really well, you will attempt descriptive writing. You are a good debater, you will attempt argumentative writing. तो किसी बच्चे को ये मतलब ये being a teacher I completely agree with this particular point. You have to be a special you know a specialist in one particular concept. It cannot be, but I guess recording बंद हो गई. Okay, That's we're I back on, paused. I guess. Okay, it's back. I mean, yeah, I've connect हो गया था. तो खैर, yeah, I agree कि luck का बहुत कम part होता है. और even in case of Richard Branson और Donald Trump, बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होता है, but they don't become Donald Trump or President of America. So yeah, you have to create your own path. So yeah, that's okay. So yeah, let's move to next topic जो मेरे ख्याल में आपको शायद पसंद है, and that is learn to sell. तो ये बहुत इसमें emphasize किया है कि you have to learn to sell. तो इससे क्या, what do you think of it? I think why Peter highlighted this point in his book is being a salesperson. आपको तो इस point को समझने में कोई मसला ही नहीं आया होगा, ठीक है? And me being a language person, मुझे भी इसको समझने में कोई बात, because I know at the end of the day आप अपनी communication skills के basic पे the way you speak, the way you behave, everything goes, because मेरी तो field ही यही है, तो हम दोनों में तो इसमें कोई वो difference of opinion है ही नहीं इधर, but it's basically for engineers और इस तरह के लोग जिनका sales वाले department पे इतना ध्यान नहीं होता, they are more about creating that one product. ठीक है ना? तो जब वो प्रोडक्ट बन जाती है, they don't know how to market it well. और उस बुक में फिर further gave examples of so many different companies and ideas that went nowhere because they weren't marketed right. हाँ, agree. Okay, yeah, we are still connected, so yeah, good. ओके सादिया, हमारा वो रिकॉर्डिंग थोड़ा मैंने पॉज कर दिया था, वो आपकी साइड, आई डोंट नो किसकी साइड पे थोड़ा स्लो हो गया था, बट या लेट्स गेट बैक टू इट. तो सेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. और ये स्टीव जॉब भी अगर आप देखें तो he was basically a marketer. He knew how to sell his product. So I didn't actually study Steve Jobs' career that well. मुझे वही पता है जो basic एक मतलब through news media आपको पता होते हैं. But yes, I completely agree with this point कि selling, marketing your product the right way is what you have to do. Teacher के perspective से भी देख लें, पहले दिन ही आके in your first lesson you have to show everyone that you mean business. Like you know what you're teaching, you know what you're talking about. आपने अपने आप को sell करना होता है. Every one of us is selling something, a part of ourselves every single day, wherever we go in life. तो yeah, and people particularly आपके जो engineering department से लोग belong करते हैं, उनमें ये थोड़ी उनको जो है ना, पीटर ने basically book में ये चीज highlight की है कि वो इस चीज को बिल्कुल जो है ना वो disregard करते हैं. okay. Yeah, it's true. Or not just for the company, but even if you go to the interview, तो वहाँ पे भी you have to sell yourself in order to get hired. And तो selling is useful. और आपको एक book भी recommend कर रही थी related जो selling या persuasion skills के Yes. ऊपर है. Persuasion is the name of the book, and it's written by Dave Okay. Lakhani. Okay. You can Google him. The guy does this basically. वो sales जो है ना वो देता है, advice देता है companies को, and market कैसे करनी है आपने product. That's what actually he does. So, Anyway, we are just closing. और एक important point हमने बस दो important point मिस किए. एक ये कि he talked a lot about competition. इसको competition बिल्कुल पसंद नहीं है पीटर थियल को. So yeah, what did you learn about it? I agree with his point. I never looked at it that way actually. Okay. Again, going back
to the teaching perspective, schools में तो competition encourage किया जाता है, fine. लेकिन there is a difference between a healthy competition and a negative competition. Negative competition वही होता है जैसे बच्चे जो है वो stress में आ जाते हैं, उनको हर वक्त मतलब instead of looking at the bigger picture that in future I have to be somebody, I have to do something, they're solely caught up in the internal bickering and fighting. तो ये हाँ definitely one of the biggest flaws of our education system basically कि हम बच्चों को एक दूसरे के against pit करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप उनको डिफरेंट तरीके से असेस कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज लुक अप. तो लाइफ में भी यही रूल अप्लाई होता है. अकॉर्डिंग टू पीटर, कॉर्पोरेशंस डूबती ही इसी वजह से हैं, बिकॉज दे वेस्ट टाइम विद हमारी पिछले दिनों पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी कि वो एक दूसरे को जो है ना वो जैब्स मार रहे थे कमर्शियल्स के थ्रू. मैट्रेस कंपनी जो थी और करीम और उबर वो आपस में लगे होते हैं. तो मतलब बजाय वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करने के, उन्होंने अब जो एक सर्विस बना ली हुई है, बजाय उसको अगले स्टेप पे लेके जाने के वो आपस में लड़ने में मसरूफ. हाँ, आई एग्री. और पहले मुझे ये बात समझ नहीं आई थी जब मैंने पढ़ा उसके बारे में, बट आई एग्री कि कंपटीशन की वजह से आप खामखा की अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, जो कि आपको आगे बढ़ने में, स्केल करने में थोड़ा सा आपको रोकती है. तो इसलिए वो मोनोपोली को इतना ज़्यादा वो कहता है. बट मुझे एक बात बुरी लगी कि वो कहता है मोनोपोली मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू हिम पहली की मोनोपोलीज बुरी होती थी और अभी अच्छी हैं. अब वो इस तरह बोलता है. तो बोलता है जैसे गूगल एक बड़ी कंपनी है और उन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट की है और उसकी वजह से उनको फ़ायदा ये हुआ है कि वो फ्री इंटरनेट लेके आ सके दुनिया के लिए. तो वो इस तरह कवर कर रहा है. तो एनीवेज इसका पूरा पॉइंट ये है कि भाई मोनोपोली क्रिएट करो और फिर आगे बढ़ो दुनिया में. तो लास्टली उसने ये बोला है कि मोनोपोली तो क्रिएट करी जा सकती है, बट उसको प्रॉब्लम ये है कि मोनोपोली को होल्ड कैसे किया जाए. तो उसने कुछ 4 चीजें बताई हैं. तो वो क्या है, मतलब हाउ डू यू सस्टेन द मोनोपोली? Well, actually ये थोड़ा सा मेरे डिपार्टमेंट से बाहर था अगेन, बट द एग्जांपल्स ही गेव हाँ मुझे, लेकिन बट द एग्जांपल्स ही गेव मुझे उसके थ्रू समझ आ गया था. एक और पॉइंट था बुक में, वो इनडेफिनिट पेसिमिज्म, और वो मुझे आई फेल्ट लाइक एन इडियट रीडिंग दैट पॉइंट एज वेल. वो मुझे कुछ समझ नहीं आया व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट. आई थॉट मे बी थोड़ा सा लिटरली अगर मैं बैकग्राउंड से इसको देखूं तो मुझे आ जाएगा. बेसिक तो समझ आ गई. लाइक इफ यू व्यू योर वर्ल्ड फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, देयर इज नो होप. वो एक ही बात है कि भाई सब कुछ तो ऑलरेडी जो है वो बन ही जा रहा है. What next? ठीक है, you've conquered something. You did one job which nobody else on the planet was doing, or you're doing it better than everyone else. Now what? तो इसमें बेसिकली वो आपको, मुझे जो यही समझ आई, वो बुक में ये बता रहा था कि इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू दैट आइडिया, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी आगे से कॉपीज बनती चली जाएंगी. अब एप्पल के वो आप देख लें, एयरपॉड्स का कॉन्सेप्ट देख लें. कंपटीशन कॉमन कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अब कंपनी क्या करे जो एक दफा बना के बैठ गया. अब एप्पल तो नहीं ना वहां बैठ गया. एप्पल एवरी ईयर सरप्राइजेस यू, और आफ्टर यू वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं ट्वीक अपने डिजाइन के साथ. कभी उन्होंने वो पोर्ट निकाल दी, फिर उन्होंने वो होम बटन का भी वो निकाल दिया अपने फोन के ऊपर से. ठीक है ना. तो दे कीप ऑन गोइंग टू द नेक्स्ट फेज. गूगल की आपने एग्जांपल दी कि उन्होंने फ्री इंटरनेट के लिए काम करना शुरू कर दिया. सो दैट इज द की बेसिकली व्हाट ही इज टेलिंग अस के नेक्स्ट फेज शुड बी समथिंग अबाउट रिलेटेड टू योर ओन niche, but expanding in other dimension as well. I think since it's your background, you would be better able to explain these examples of Apple, Google and Amazon. नहीं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है. I mean, I'm amazed by the knowledge you have, especially not working full time in corporate setup. I mean, you have like as a freelancer, but yeah, it's amazing. मुझे जो समझ में आई वो बात, उसने कहा कि 4 चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है टू सस्टेन द मोनोपोली. और
उसने कहा कि 4 कंपनीज को आप याद कर लें तो वो आपको फैक्टर्स याद हो जाएंगे। तो एप्पल, गूगल, उसके बाद फेसबुक एंड अमेजोन। तो एप्पल से हम क्या सीखते हैं? जब भी एप्पल का नाम दिमाग में आता है तो ब्रांड जहन में आता है। उनका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। तो इफ यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग ब्रांड, देन अगर कॉपीज भी बन जाते हैं तो इट डजंट मैटर। चाइना ने कितनी कॉपीज बनाई एप्पल की, बट एप्पल को इतना फर्क नहीं पड़ा होगा। तो इफ यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांड। और फिर जब गूगल की बात की तो गूगल में उन्होंने बोला कि टेक, और एक तो टेक उनका बहुत स्ट्रांग है, 10x फास्टर वो जॉब करता है। तो आपको अगर आप जो भी काम कर रहे हो, इफ यू कैन डू इट 10x फास्टर, खासतौर पे आज के दौर में जो लोगों के पास टाइम नहीं है, तो दैट कुड बी अमेजिंग। सो ब्रांड इज नंबर 1 एंड नंबर 2 यू शुड बी डूइंग थिंग्स 10x फास्टर। और फिर फेसबुक से उसने ये बोला नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। तो होता क्या है कि मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक भी है। तो फॉर एग्जांपल हम फेसबुक पे हैं, तो आप, मेरा पूरा सर्कल फेसबुक पे है, आपका पूरा सर्कल फेसबुक पे है। कल को कोई नया प्रोडक्ट आता है और वो फेसबुक से बहुत अच्छा है, बट मेरे दोस्त या मेरा सर्कल वहाँ पे नहीं है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? तो जो नेटवर्क होता है आपका, जो और खास मोनोपोली या शुरू में कंपनी बनाने का फायदा ये है कि आप नेटवर्क इतना ले आते हो कि अब अच्छा प्रोडक्ट भी आ जाए ना तो लोग उस पर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका सारा नेटवर्क वहां पे है। तो आजकल मुझे स्काइप से बहुत चिढ़ हो रही है, वो बड़े मसले आते हैं उसमें, बट मैं छोड़ नहीं सकता। मेरी पूरी कंपनी के जो सारे कॉलीग्स हैं वो स्काइप पे एडेड है। तो अब आई के नॉट, इवन इफ आई वॉन्ट टू, आई के नॉट एग्जिट स्काइप। तो ये नेटवर्क इफेक्ट का बहुत बड़ा फायदा है। एंड लास्टली वो अमेजोन की एग्जाम्पल देता है। अमेजोन इज बेसिकली इकोनॉमीज फॉर स्केल। तो अब अमेजोन का ऑपरेशन इतने बड़े हैं कि उसको एक प्रोडक्ट, लेट्स से उसको अगर डिलीवरी करनी है, वो फ्री भी डिलीवरी करे तो उसको इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं आएगी, वर्सेस अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेके आता हूँ और मैं फ्री डिलीवरी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इतनी बड़ी कंपनी बनाने का और प्रोडक्शन करने का, ये भी बहुत फायदा है। So yeah, I mean, yeah, these are amazing concepts that he talked about. And for any person from an entrepreneur background or tech background, yeah, they should love the book, I believe. Yes, exactly. But I would like to point out over here कि अगर आपका background ऐसा है भी नहीं है, tech नहीं है, you're not an entrepreneur or something, I think students जो आजकल के हैं ना, उनको ये book जरूर पढ़नी चाहिए. Okay. Because they are growing up in a world which makes them push boundaries, और उनको ये चीजें पता होनी चाहिए. मेरे जो अपने O level के students हैं, मैट्रिक के बच्चे हैं, आपके ए लेवल के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आई गेस इन सब जो इस एज ग्रुप के लोग हैं ना, इनको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर, एंड डेफिनेटली आई वुड बी रिकमेंडिंग इट टू माय स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि आपका जी मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो ये नहीं पढ़ता या मैं ये नहीं पढ़ती. It's not about that. You should know how your world works, because the world they are growing up in, वही बात है. आप जो है वो Amazon के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू जो है ना, वो मेजर करते हैं कि एक कंट्री ने कितनी प्रोग्रेस की है. पाकिस्तान में नहीं है Amazon, और उसकी इतनी रीजंस हैं. तो वो यहीं से आपको पता लगे पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है, कि वहां पे Amazon अवेलेबल नहीं है अभी तक, ठीक है ना, पेपैल नहीं है पाकिस्तान में अभी तक. तो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तान क्या है. तो whether you have that background or not, you need to read this book. Yeah, it's about developing the mindset. और मसला सिर्फ इतना ही है, हम Amazon इसलिए शायद नहीं बना पा रहे, I mean I have no one to comment on that, but इसलिए कि people do not have the mindset कि वो अपनी वो दूसरी ब्रांच नहीं खोलते तो Amazon क्या बनाएंगे. तो बस ये mindset का फर्क है. I would like to add something over here regarding पॉडकास्ट जरूर सुने सारे विद सनी अली. ओके. दैट और उसने वो बड़ी अच्छी पॉडकास्ट थी. एक्चुअली इस बुक के बाद आपके पास अपने अंदर माइंड में भी एक क्वेश्चन होना चाहिए, और वो पॉडकास्ट पे अगर फोकस ऑन स्किल बेस्ड लेबर, इस तरह के काफी मजे मजे के क्वेश्चंस यू नो दे कम टू योर माइंड व्हेन यू रीड सच बुक. और मैं तो सबको ये रिकमेंड करूंगी पॉडकास्ट जरूर सुने. द आंसर इज देयर of why we don't have Amazon. It has to do with your upbringing, it has to do with the culture over here, like you mentioned, कि कोई फ्रेंचाइजिंग नहीं करता, बस एक दुकान जो खुली हुई है वो जो है ना 3 generations उसी दुकान को चलाएंगे जब तक वो दुकान खत्म नहीं हो जाएगी.
Yeah, very true, very true. Okay, yeah, it's very nice talking to you. I mean, yeah, you have amazing observation. I hope we keep on doing further books, maybe. Sure, inshallah. It was nice talking to you as well. This was fun talking to like-minded people and discussing books, whatever we can. Yeah, well, thanks a lot. Yeah, So yes, let's continue this inshallah. चलें next time कोई और book पर pick करता. Thank you. अल्लाह Sure. हाफ़िज़. Love this.